the forefront and enables, helps, assists Divyangjan. With this, I request all the dignitaries to come on the stage and we will start our first session, which is Cinema Meets Inclusion. कहानियां, इतनी सारी सभ्यता, इतनी सारे सिविलाइजेशंस पिछले 3 से 5,000 सालों में नष्ट हो गए। अनफॉर्चुनेटली सब के सब जो अच्छी चीजें थी लुप्त हो गई। The only civilization which kept on standing was and is the Sanatan Bharat Sabhyata. And the only reason behind it is stories. To initiate this panel, can I request all the dignitaries to come on the dais? Can I request Forum Nagore ji to come on the stage? On the stage. Round of applause for Forum Nagore ji, the trustee and the CSR head of Tata Power Group, a lady with a golden heart, an alumnus of HR College and Tata Institute of Social Sciences, a lady who brought the vision of not only enabling Divyangjan, skilling Divyangjan, but bringing innovation and technology to ensure the economically weaker section of Divyangjan is also benefited with the cheapest form of technology. So I would request Ms. Forum Nagore ji to have a seat. Can I request Mr. Anupam K, who needs no introduction, to come on the stage? Everybody, can we have Mr. Anupam K to come? Can I have Thank you, Siddharth. That was very kind introduction. Namaste, सब लोगों को सुप्रभात and namaste Jitendra Agarwal ji, the entire team of NAI, the whole team present here. It's an honor for us to be associated with this long serving team. तो भारत में कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव चाहिए, तो बड़ा लंबा काम करना होगा, correct? So thank you so much for being long stayers, and we as Tata Group, as Tata Power, are always into long-term development, into long-term change. So we are proud to add force to this movement led by Jitendra Agarwal ji and his team. So a few things about pay attention. तो सिद्धार्थ ने बोला कि इसका जन्म कैसे हुआ, और मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि ये हम जो फिल्म की बात कर रहे हैं तन्वी द ग्रेट, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, तो ये दोनों चीजों के बारे में बात करूंगी. So pay attention as a program originated from the vision of our top leadership, including Mr. Chandrasekhar, the Tata Sons chairperson, Dr. Sinha, who is the head and MD of Tata Power, who has been transforming the power sector in the country, along with so many partners and along with the government in the country. तो ये हमने जब सोचा था कि टाटा पावर इतने रिमोट एरियाज में काम करता है, तो हम 200 जितने एरियाज में काम करते हैं देश में, अलग अलग रिन्यूएबल्स कहीं चलता है, कहीं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं हमारा जनरेशन चलता है, कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है. तो इन सब नेबरहुड्स में हम जब PWD हाइड्रो और स्पेशली न्यूरो डाइवर्स
जिसकी इंक्लूजन इंडियन एक्ट इटसेल्फ बड़ी लेट हुई है। तो न्यूरोडाइवर्स लोग या मेंटली, जिसको पुराने टाइम में बोलते थे मेंटली चैलेंज्ड, उन लोगों के लिए बहुत कम काम, बहुत कम इकोसिस्टम सपोर्ट होता था। तो हमने सोचा कि 200 रीजन में तो हम क्या मैजिक कर डालेंगे। It will be very difficult, right, to be able to put up special centers everywhere. So one thought which has been our grounding force has been how to collaborate between the normal schools, normal ecosystems and disabled ecosystems. तो हमने सोचा कि हम एक ऐसा digital platform बनाते हैं, and I will encourage you all to see the Pure Attention platform, जो normal आंगनवाड़ी workers को, ANMs को, हेल्थ वर्कर्स को, पेरेंट्स को एम्पावर करें कि किस तरह से थेरेपी का कुछ अंश घर पे किया जा सकता है। So our whole vision is about enabling the parents, enabling the direct family ecosystems of the PWDs, of the neurodiverse, in a way that the dependence on just specialists reduces. And of course, remote regions में specialists मिलना ही मुश्किल है। तो e-सानिध्य platform is with the EPWD. I will also encourage you all to go to the e-सानिध्य platform and look at this whole vision from the lens of how the narrative in the mainstream world needs to change. So, dosti between the neurodiverse and neurotypical is our mission, and we are very happy to bring here a mainstream narrative very soon, which will also be introduced. Thank you so much. With that, I will hand over back to mainstream जगहों में क्या change चाहिए. So Pay Attention partners and collaborates and is very, very proud to work together with Tanvi the Great. And with that, I will request to play the trailer on that. On the stage, Anupam Kher sir, Pallavi, Dr. Jitendra Agarwal ji, to be able to come and have a few minutes conversation on how mainstream storytelling will make a difference to this cause. Inviting Dr. Agarwal, Anupam ji, Pallavi. Shubhangi, I'm sorry, your name is wrong. Please have a seat. Welcome. Harman, thank you. I will just moderate this conversation between change makers of society. So honored to do so. So, Mr. Rastogi, thank you so much for joining us. And a quick few thoughts, especially coming from the realm of Pay Attention and e-सानिध्य experience, कि हम देखते हैं कि बहुत नैरेटिव की ज़रूरत है, बहुत कहानी की ज़रूरत है अपने देश में लोगों के माइंडसेट में बदलाव लाने के लिए। तो ये जो कहानी आप बताए हैं तन्वी द ग्रेट, what motivated you, sir, to tell a story of this nature? It's a story told with a lot of passion, with a lot of emotional connect. Would love to hear you, sir. बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए यहाँ पर गैसनो डिजिटल कॉन्फ्रेंस में जो आपने बुलाया है। आई फील वेरी ऑनर्ड। आई एम हियर विद माय प्रोड्यूसर मिस्टर हरमन डिसूजा एंड माय लीड एक्ट्रेस Shubhangi. Still plays the role of Tanvi in this film. मेरी एक नीस है जो मेरी सिस्टर की बेटी है, उसका नाम तन्वी है और वो जब 13 साल की थी, वो ऑटिस्टिक है। जब वो 13 साल की थी तो हम मेरे भाई की बेटी की शादी मना रहे थे दिल्ली में एक फार्म हाउस में, और सब लोग डांस कर रहे थे, खाना खा रहे थे, गाने गा रहे थे, और तन्वी जो थी वो एक बैल्कनी के पास पहाड़ों को देख रही थी। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा तन्वी व्हाट आर यू लुकिंग एट? तो शी सेड आई एम लुकिंग एट माई वर्ल्ड। अब
ये बोलने में आसान था उनके लिए कि I'm looking at my world, बट मुझे समझ में नहीं आया कि इसका वर्ल्ड क्या होगा। ये आज से 4 साल पहले की बात है, और वहाँ से मुझे आइडिया आया इस फिल्म का, तन्वी द ग्रेट का, कि जिनको सोसाइटी डिफरेंटली एबल्ड बोलती है, मेरे हिसाब से वो सुपर हीरोज होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मेरे भैया जी यहाँ पर हैं, ये मेरे को ऑफिस में मिलने आए थे और बहुत अच्छा लगा था मुझे इनसे मिलकर। इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे उम्र में बढ़ते चले गए इनकी आई साइट का इशू हुआ, तो ये सुपर हीरो है हमारे भी, जो जिनको सोसाइटी डिफरेंटली एबल्ड बोलती है, इनफैक्ट वो बहुत एबल्ड हैं, उनको जो नॉर्मल लोग हैं वो डिसेबल्ड लगते हैं। बिकॉज जो नॉर्मल लोग हैं वो उनमें मैनिपुलेशन है, उनमें चालाकी है, जो इन लोगों में बिल्कुल नहीं है। तो हम आम लोग जो हैं, मुझे लगता है कि हमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलना चाहिए, और जो गुडनेस है, जिसको गुडनेस बोलते हैं, अच्छाई बोलते हैं, वो इनमें कूट कूट के भरी होती है। तो मैं आज के दौर में एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जो अच्छाई के बारे में, और स्ट्रेंजली अच्छाई हमको एक ऑटिस्टिक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है, जो फिल्म में आगे जाकर एक ऐसा काम करती है कि उसको देखकर दिल करता है कि इसको ओलंपिक मेडल दे दें। तो ये इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई। Beautiful, sir. So well said. Thank you. This question is for you, Bali. How did you feel as playing that character and also interfacing with all the other characters? So there is the neurodiverse and there's the neurotypical. So how did you feel? Imperfections and growth journey, a learning curve. हर एक character की है आपके फिल्म में. What was your feeling while interfacing with all the others, and what made you come alive as a character? First of all, सबको मेरा namaste, and it's an honor to be here. I think when I started playing this character, when Sir selected me, my first instinct was I started doing my research and I just found out that everybody is different, everybody is unique, and everybody is beautifully themselves. So I think my first approach was to just find the purity in the character and start believing in the goodness. And my takeaway from it was the same, just to be kind, be good to yourself and the people around you. Like I feel the young lady over here is a superstar. Amazing how brilliantly she is doing what she is doing. How amazing. What's your name? Preeti. Preeti, wonderful. So to be able to do, I have to be able to do this. This question is to Dr. Jitendra Agarwal sir. जितेंद्र जी, आप ये समाज में बदलाव के लिए काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, एंड यू हैव सीन what works, what doesn't work. How do you change the mindset in the normal schools, in the normal institutions? And Anupam ji, ऑटिज्म एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। हर एक 10वां बच्चा अब ऑटिस्टिक पैदा हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके। हम लोग स्पेस में चले गए हैं, बट हमें अभी पता नहीं है कि इसका कारण क्या है। ग्लोबली पीपल आर नॉट अवेयर इसका कारण क्या है। जैसे एक ब्लाइंड व्यक्ति है, उसके कारण पता चल गए हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, चश्मा
लगा के देख सकता है। हीरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए कोक्लियर इम्प्लांट है, और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए एक व्हील चेयर। बट ऑटिस्टिक बच्चे के लिए कोई कारण ज्ञात नहीं है कि किस कारण से ये ऑटिज्म बढ़ रहा है, और बड़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है। और आई थिंक अभी समाज के हर तबके में है। पहले हम दिव्यांगता जो देखते थे वो नीचे वाले तबके में देखते थे, अब ये ऊपर वाले तबके में, मीन्स लाइक पीपल विद अच्छे बैकग्राउंड के ये भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। और हमारे जो ऑटिज्म है वो अलग तरह का है, कुछ माइल्ड होता है, कोई मॉडरेट है, कोई सीवियर है, कुछ ऑटिज्म में ADHD भी रहता है, और कुछ ऑटिज्म में बच्चे हीरिंग इम्पेयर्ड भी रहते हैं। इन बच्चों में जो चैलेंज रहता है वो कम्युनिकेशन का है, मतलब बोल नहीं पाते, उसका उनका सोशल इंक्लूजन नहीं हो पाता, उनका जो सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, उनका बिहेवियर इश्यूज होते हैं। तो जैसे अनुपम जी ने बताया, ये निखालस है, मतलब बोल्ड है, इनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं, जो हमारे अंदर सबके अंदर भरा हुआ है वो उनके अंदर नहीं है, वो बिल्कुल प्योर है। बट अब हम ऐसा देखें कि हमें नहीं मालूम कि उनके साथ कैसा करना है, वो हमारी कमी है। बट उनका जैसे अनुपम जी ने बताया कि वो तन्वी उस पहाड़ के उस अपने संसार को देख रही थी, बट हम नहीं देख पा रहे, तो हमें उनके बीच में बैलेंस करना है। काफ़ी कुछ काम हुआ है, बट मैं ये बोलूँगा कि सब अभी एंट्री लेवल पे है, और डिसेबिलिटीज़ में काम काफ़ी हद तक आगे तक चला गया है। बट ये सब रिसर्च की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ में रिसर्च हुई है, कुछ चीन पे हुई है। उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करें तो एंट्री लेवल की टेक्नोलॉजी है, आपको कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। आई थिंक आज भी 10-20 स्टार्टअप आए हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो उनको बेसिक सपोर्टिव थेरेपी, सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी है। अभी एम्प्लॉयबिलिटी की बात की जाए तो इन दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत कम एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कुछ बच्चे रिटेल हॉस्पिटैलिटी में हैं। आई थिंक एक बच्चा यहाँ आज आया है, सोहम, अगर खड़े होंगे बेटा, सोहम इज ए ऑटिस्टिक चाइल्ड जो JP मॉर्गन में काम कर रहा है ना। सोहम JP मॉर्गन बैंक में एनालिस्ट का काम करता है, ये ऑटिस्टिक है। बट जो इनकी हीरो है, इनकी मम्मी है, इनकी मम्मी आई है इधर, उनके लिए ताली बजाइए का। मैंने जब उनकी मदर से इंटरेक्ट किया तो मेरे को लगा कि उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया, अपने काम को छोड़ दिया है। तो इस तरह से हम ऑटिस्टिक बच्चों के, मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज माँ बाप का एक्सेप्टेंस होता है। और जो 0 to 3 साल का जो समय होता है बच्चे का निकल जाता है, माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसकी प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। तो हमें, मेरा माँ बाप से सभी से निवेदन है कि इस तन्वी द ग्रेट मूवी को देखने के बाद आप एक्सेप्ट करिए यूर चाइल्ड इज ऑटिस्टिक। आप उसको ऐसे समझिए कि वो बांके बिहारी राधा रानी के स्वरूप में आपके घर में आया है, आपको उसकी सेवा करनी है, बस इसी भाव से आप उसको सेवा कीजिए तो वो बड़ा हो जाएगा। आई थिंक जैसे फोरम जी ने जो सवाल पूछा अवेयरनेस का, अवेयरनेस हमें सबको याद है कि हम संडे को 2 बूंद जिंदगी सुनते थे बच्चन साहब का, और हमने पोलियो को इरेडिकेट किया। तो अनुपम सर ये जो मूवी बनाया, आई थिंक इससे पूरे देश में, क्या विश्व में एक उजागरता आएगी अबाउट ऑटिज्म, लोग जानेंगे कि ऑटिज्म क्या है। और हम आपसे यही निवेदन करेंगे सर कि इस तरह का आप बनाते जाइए सिनेमा, बिकॉज सिनेमा गांव तक और नीचे ज़मीन तक पहुंचता है। तो पूरम मैम, जैसे आपने बताया कि अवेयरनेस इज की टू सोल्विंग एनी चैलेंज व्हेन इट कम्स टू पीपल विद डिसेबिलिटी, और कि कोई भी समाज में कोई भी चैलेंज होता है तो हम अवेयरनेस से कर सकते हैं। तो आई थिंक ये मूवी जो तन्वी द ग्रेट है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सब इसको जरूर जाके सिनेमा में देखिए और अपने जो है ना इसके बारे में अवेयरनेस पैदा कीजिए अबाउट ऑटिज्म। This is what Tata Power's Pay Attention program and the East partnership with the government has been promoting कि ये सब्जेक्ट को लाइट कैसे किया जाए। वजन बहुत कभी महसूस होता है कंधे पे कि बड़ी समस्या है, बड़ा प्रॉब्लम है, बड़े दूर है नॉर्मल सोसाइटी से, ये सब कम किया कैसे जाए। हाउ डू वी ब्रिंग दिस क्लोजर टू द मेन स्ट्रीम, and this has been exactly what Pay Attention and East India is working towards. We do dance movement therapy, we do a whole lot of play, we do a lot of things which allow for the autistic children, for the neurodiverse to play together and be together with normal children, normal societies, schools, teachers, etc. So this has been our philosophy, our passion, and this is what we are driving. We are looking forward to taking this movie, Thanvi the Great, to many of our partners and stakeholders, people who have been believing in integration versus segregation. And we are looking forward
one last message from each of our dignitaries and panelists here on what would you want the cross sections of society, normal, caregivers and neurodiverse. 3 segments तो मुझे सीधे सीधे दिखते हैं सर, तो इनके अलावा कोई segment आपको दिखता है? A message for each of the segments from all of you. हमारे All of them. सर आपको तो बोलना ही है. Hello, welcome everybody to today's event and wish you all the best for the competition that lies ahead. A message that I would like to give out to the society generally in this space is to acceptance, make sure that we include them in society, treat them as normal, do not make a big deal out of it, learn how to play with their strengths and learn how to work with their strengths rather than observe or focus on their weakness. Each of us within us have so many aspects that could be weaker than what they have. So let's just be aware of the entire phenomenon and use them and help them absorb into society like all of us. That's what I would like to say. Thank you. So there is a dialogue in our film. In India, we may not know much about autism, but we know a lot about care. And that is a prime example of the lady with her son over here, ma'am. So wonderful. मैंने हमेशा नोट किया कि मेरी बहन भी है, जिनकी बच्ची तन्वी है, वो भी इतनी मेहनत से अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को उन्होंने बनाया है कि उसमें कोई ऐसी हमारा also tagline of our film is different but no less, and message is to sort of we have made this film for the awareness also, and it is very entertainingly told. I'm sure a lot of people are very my sister's daughter is very funny. She really तन्वी ने, हमारी शुभांगी ने इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है और बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं कराया उनको कि वो बहुत बड़े कलाकार हैं, बल्कि उन्होंने उसको बहुत प्यार दिया है और यही हमको, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि सुपर पावर है। और ये मैं कोई एग्जैजरेटेड बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपको 10 ऑटिस्टिक वर्ल्ड के टॉप ऑटिस्टिक लोगों के नाम बताऊँ, मैं बताना चाहूँगा आपको, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये लोग ऑटिस्टिक हैं। लेट मी डू इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, लियोनार्डो दा विंची, द फेमस पेंटर, विंसेंट वैन गॉग, द फेमस पेंटर, स्टीवन स्पीलबर्ग, द डायरेक्टर, एल्फ्रेड हिचकॉक, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने फोन बनाया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इलॉन मस्क, ये सब ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में आते हैं। तो आप अपने आप समझ जाइए कि हमारा जो नॉर्मल समाज है उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा टुवर्ड्स ऑटिस्टिक पीपल। थैंक यू। जैसे अनुपम जी ने बताया कि टॉप 10 और इसमें बहुत सारे बड़े और भी नाम हैं। आई थिंक गूगल में अभी ये सर्च किया होगा, बट हाँ, बिल गेट्स, बहुत सारे नाम हैं। तो मेरे को लगता है कि मेरा निवेदन सभी माँ बाप से यही रहेगा कि आपके बच्चे को एक्सेप्ट कीजिए। ऑफ कोर्स एक मदर या फादर को लगना पड़ेगा उसके साथ में, आई थिंक, और उसके बाद आपका बच्चा आगे जाएगा। आई थिंक अभी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या जो भी उस ऑडिटोरियम में लोग बैठे, मेरा उनसे निवेदन है कि आई थिंक आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप क्यों नहीं एक बच्चा जैसे सोहम बैठा है, उसकी पिक्चर, उसके बारे में कि वो क्या करता है, ताकि इस मूवी के बारे में आप कुछ एक अपने सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। पता नहीं कौन सी पिक्चर गांव तक पहुंच जाएगी और गांव में जो माँ बैठी है उसको कोई ना कोई सपना जीने का मिलेगा। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप और इतना सारा चीज़ें शेयर करते हैं, आप इसके बारे में बताइए, इस मूवी के बारे में शेयर कीजिए, ऑटिज़म के बारे में सर्च करके बताइए, ताकि
गांव तक ये बात पहुंचे और गांव में भी जो है इंक्लूजन जो बात करते हैं गांव में जाएंगे। और मैं इस पूरे प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए फोरम जी का, पूरी टाटा पावर टीम का, टाटा ग्रुप कंपनी का जोर से धन्यवाद करूँगा। एक बार हम जोर से टाटा पावर, टाटा ग्रुप कंपनी के लिए ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। कबीरदास जी का एक छोटा सा दोहा है, जाति न पूछिए मानव की, जाति न पूछिए मानव की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहे मयान। जैसा अनुपम खेर जी ने बोला, डॉक्टर अग्रवाल ने बोला, तन्वी जी ने बोला, अगर हमारा फोकस दिव्यांगजन और वित्तीय, फाइनेंशियल, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये अविस्मरणीय घटना होगी। शायद लेमन ट्री ने यही किया था। उन्होंने एक दिव्यांग बच्चे से हायरिंग शुरू की। आज लेमन ट्री होटल्स का लगभग 40 से 50% जो स्टाफ है वो दिव्यांगजन है। क्यों? क्योंकि दिव्यांगजन ब्रेक नहीं लेते, गप्पा गोष्ठी नहीं करते, इधर का उधर का समय खराब नहीं करते। जिस समय कोई एक व्यक्ति सिर्फ 8 से 9 रूम्स बना पाता है, दिव्यांगजन 11 से 12 बना पाते हैं। इट मेक्स फाइनेंशियल सेंस टू हायर, एम्प्लॉय एंड प्रमोट दिव्यांगजन। अगर हमारी सोच ये हो गई कि दिव्यांगजन बेहतर है, सामान्य नहीं है, बेहतर है, तो इट विल लीड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल वेलबीइंग एज वेल। धन्यवाद। I want to thank Forum ji आपको, and I want to certainly, I'm very have a great gratitude for Tata Power who have joined our campaign for Tanvi the Great. It's organizations like you and people like you who support a film like Tanvi the Great to help us reach, like Dr. Agarwal said, the wide spectrum. हमारे फिल्मों में या बाकी लोगों में आजकल समाज में इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बोले जाते हैं जिनको पैसा मिलता है, पर मेरे लिए इन्फ्लुएंसर्स ये हैं, हर एक इंडिविजुअल जो ट्रेलर देखकर या फिल्म देखकर 10 लोगों को बोलेंगे, 5 लोगों को बोलेंगे, उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हमारे लिए कोई नहीं है। वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you everyone here. And I would request Anupam ji and the audience to have an interface space. So if there is questions, if sir would like to, engage, it will be wonderful. किसी के कोई प्रश्न है अनुपम जी से तो पूछ सकते हैं। In the meantime, can I request Dr. Suman Agrawal and Feroz Bacha ji to come on the stage? And this is a small memento of Stephen Hawking, who's legendary in himself, to hand it over to Anupam Kher ji, Feroz Bacha ji to hand it over to Shubhangi Dutt ji. Can I request Dr. Suman to give it to Forum ji? Can I request Feroz Bacha ji to hand over the memento to Harman D'Souza ji? Can I request KB Tejas ji, who is the lead associate CSR sustainability, to come on the stage and to be facilitated by Dr. Suman Agrawal? Can we have Tejas ji to come on the stage? He has been instrumental in leading the initiative. Can I have Rishi Mukherjee ji to come on the stage to be facilitated by Feroz Bacha ji? Can we have Shweta Nair to come on the stage and be felicitated by Dr. Suman? Also, there is a book, The 100x Formula, which has been written from the life of a young girl. And can I request, and that book has been forwarded by Shri Nitin Gadkari ji. Can I request Forum ji to hand over the book to Anupam Kher ji?
have everyone to come on the stage? Can we have all the Thank you very much. धन्यवाद अनुपम खेर जी, आप आए, आपने इतना समय निकाला. Many many thanks. Government and the CSR. How can government corporate social responsibility bridging the businesses between the government and the CSR to moderate this level, consistently delivering exceptional customer experiences and maximizing revenues. In a remarkable career, he pivoted and transitioned from the corporate world to law, successfully completing his legal studies. He is a practicing advocate at Bombay High Court, specializing in the civil law. शैलन सो गुड टू सी यू सर। Thank you. मतलब कि बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए, अपने इस कार्यक्रम में जुड़े। किस तरह का कार्यक्रम कितना ज़रूरी हो जाता है इस भारतीय संस्कृति के लिए, इस देश के लिए? हमने जो फिल्म बनाई है तन्वी द ग्रेट, वो मेरी ऑटिस्टिक भांजी पर से आइडिया लिया था, और वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ऑटिस्टिक होते हुए भी बहुत ही बहादुरी का काम करती है। और जो ये हमारी आज का जो आयोजन हुआ है, इसमें देखिए फिल्मों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने चाहिए, जिससे सुधार हो, जिससे अवेयरनेस हो। इन सब बच्चों को जो मुझे सुपर पावर लगते हैं, उनको देखकर ऐसा महसूस हुआ कि ये जो इस ओलंपिक में जा रहे हैं, जो फिनलैंड में होने वाला है, उसमें उनका हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि वहाँ से और भी मेडल जीत कर लाएँ, और हमारे देश का और हमारे इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, जो कि मोर पावरफुल हैं नॉर्मल लोगों से, उनका प्रोत्साहन। सर तन्वी द ग्रेट ये पावरफुल इंस्पायरिंग मूवी लगी रही है, बट उस फिल्म के नीचे टैगलाइन दिया गया है डिफरेंट बट नॉलेज। इसके पीछे की कहानी आप जानना चाहिए। तन्वी द ग्रेट 18 जुलाई को लग रही है, और उसकी टैगलाइन है डिफरेंट बट नो लेस। बिकॉज इन लोगों को समाज में शायद कभी कभी अलग नज़रिए से देखा जाता है। अभी हम एक बच्चे की और उसकी माँ को मिले, मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा कि वो डिफरेंट है मगर किसी से कम नहीं है, और ये बात तन्वी की मदर उसको बार बार कहती रहती है, बार बार वो, इसलिए वो उसके मन में समा गई है बात कि वो किसी चीज़ को करने से डरती नहीं है। और वो जब भी उससे कोई आदमी कहता कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो फिल्म में, तो कहती नो, यू आर रॉन्ग, आई एम डिफरेंट बट आई एम नो लेस। जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपका किरदार है इसमें, हम लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग आपको समझा रहे हैं कि ये आपके लिए नहीं, आप नहीं कर सकती, पर आपके अंदर वो जज्बा है करने का। आप लोगों को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो इस फिल्म के जरिए भी। आपका कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस अनुपम के साथ भी और इस फिल्म में? आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट आई थिंक उससे कहीं ज़्यादा एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में। आई थिंक ऑटिस्टिक लोग एंड हम सबको आई थिंक शायद सिर्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, एंड उनको अगर किसी चीज़ में पार्ट लेना, अगर उनको लाइफ में कुछ करना है, तो आई डोंट थिंक कि पीछे हटना चाहिए। आई थिंक सबके लिए रूल्स वगैरह सब सेम होने चाहिए। आई थिंक एवरीबडी इज़ डिफरेंट। दैट्स व्हाई हमारी मूवी तन्वी द ग्रेट का यही टैगलाइन है कि अलग तो हर कोई है, बट कोई किसी से कम नहीं है। एंड आई थिंक ये तन्वी द ग्रेट हमारी मूवी से हम सबको ये इंस्पायर कराना चाहते हैं दैट कि आपका जो हार्ट कहता है, आपका जो दिल कहता है, आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। आई डोंट थिंक एनीथिंग शुड होल्ड यू बैक, और एंड ये नथिंग शुड मेक यू इस फील रोल की लेस। तैयारी के लिए 15 दिन तेजपुर में हमारी तन्वी के साथ गई भी रहने। तो जब इन्होंने वहाँ से पूछा था कि मैं हमारी तन्वी को उसके वो कैसे बातचीत करती है वो देखना, मैंने कहा नहीं, तुम्हें उसकी आत्मा पहचाननी है। आत्मा पहचानोगी तभी इस रोल को बहुत अच्छी तरह कर पाओगी। और मैं बड़े
गर्व से कह रहा हूँ कि इन्होंने ये रोल बहुत बखूबी निभाया है। इसकी अवेयरनेस वर्ल्ड में जाएगी, बिकॉज मैंने जैसा कि अभी मंच से कहा कि हमारे यहाँ एक डायलॉग है हमारी फिल्म में कि इन इंडिया वी मे नॉट अंडरस्टैंड ऑटिज्म बट वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ केयर। मुझे लगता है इस तरह के इवेंट बहुत ज़रूरी हैं और बार बार पूछा जाता है अरे आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तक आए हैं। हमारा वक्त बिल्कुल कीमती नहीं। ऐसे 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 आयोजनों के लिए तो चाहे जुहू से आना हो चाहे चांद से आना हो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद फिल्म हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमारी जीवन नहीं है। और यही जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमें जो ये फिल्मों में के ज़रिए ये पॉपुलैरिटी मिली है उसका कुछ अच्छा फ़ायदा भी उठाना चाहिए, और आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। आप दोनों से जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये एसोसिएट किया जा रहा है, एक स्टेप आगे लिया जा रहा है, भारत को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तन्वी द ग्रेट एक ऐसी मूवी है जिससे सेंसिटाइजेशन हुआ है। सबसे ज़्यादा जो आज के दिन में समाज में दिक्कत है, एक एक्सेप्टेंस की, जैसा शिवांगी जी ने बोला, दूसरा सेंसिटिविटी की। हमें लगता है कि जो हम हैं वही निपुण हैं, लेकिन अगर हमको 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो दिव्यांगता है, तो ईश्वर ने उनको भी संपूर्ण बनाया। पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात सब कुछ पूर्ण है। उस दिव्यांग जन में भी पूर्णता है, हमें वो देखने की जरूरत है। और जैसे अनुपम खेर जी हैं, उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है उस पूर्णता को निकालने के लिए। तो ये तन्वी द ग्रेट एक ऐसा माइलस्टोन होगी इंटरनेशनल सिनेमा में, जहां पे लोगों को पता चलेगा कि दिव्यांगजन दे आर नॉट लेस, दे आर बेटर। दैट्स द मैसेज जो अनुपम खेर जी देने का प्रयास कर रहे हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है सर, आप में किसी भी कोई जज्बा भरा हो कि नहीं सर ये आप कर सकते हैं, स्टार्टिंग के दौर में कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर तो मुंबई शहर में 80s में बालों का ना होना भी एक डिसेबिलिटी होता था, खासकर अगर आप फिल्मों में जाना चाहते हैं। मगर मैं हमेशा अपने आप को कहता था आई मे नॉट हैव हेयर बट आई एम बेटर देन एनीबडी एल्स, क्योंकि मुंबई में उस ज़माने में 81 में गोल्ड मेडल से, मेरा एक्टिंग में गोल्ड मेडल से होना ज़्यादा ज़रूरी। बाल नहीं है जी, आप एक्टर कैसे बन सकते हैं? आप राइटर बन जाइए, आप असिस्टेंट बन जाइए। तो मुझे एक डिसेबल की तरह, डिफरेंटली एबल नहीं, वो तो अब बड़े अच्छे वर्ड बने हैं, तब तो बोलते थे आप में काबिलियत नहीं है क्योंकि आपके बाल नहीं हैं। और मैंने इस बात को कभी परेशान नहीं करने दिया अपने आप को, और आज 40 सालों में मैंने 550 फिल्में कर ली हैं। तो बिकॉज आई एम डिफरेंट बट नो लेस। धन्यवाद, धन्यवाद साहब।